Hello everyone, welcome to JK Exam Cracker. So this is the female supervisor revision series day 4, and in this particular lecture we are going to revise the topic of growth and development with the help of some MCQs. All right, and for those students who are interested हैं to have a mock like experience, I would suggest them कि जो ही उनकी screen पे questions flash होंगे, they should pause the video and try to answer the questions on their own. ठीक है, let's move towards the first question. Alright, question is, during infancy a child's growth can be described as, and the correct option is option B. ठीक है, that is rapid. ठीक है, during the infancy period of a child, ठीक, जो physical and जो cognitive domains होते हैं उनकी जो growth है वो rapid consider करी जाती है, and that is actually rapid. ठीक, next question. Alright, so the question is, which of the following milestones typically occurs during infancy? And the correct option is option B, that is rolling over, sitting, crawling and taking first steps. ठीक, they are the milestones जो infancy के दौरान लिए जाते हैं. Next question. Question is, in infancy the transition from coos and babbles leads to, and the correct option is option B, that is understanding the simple commands. ठीक है, okay. That means during infancy बच्चे पहले simple sounds निकालना start करते हैं and then they try to follow and understand the simple commands. ठीक है, जैसे come here etc. ठीक, next question. Question is, attachment bonds formed during infancy are primarily with, and the correct option is option C, that is caregivers. ठीक है, जो बच्चे की पाल परवरिश करते हैं उनके साथ सबसे ज़्यादा बॉन्ड्स इन्फेंसी के दौरान बनते हैं. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन देयरफॉर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is, which physical milestone is typically achieved during the toddler stage? And the correct option is option B, that is bladder control. ठीक है, जो ही बच्चे इन्फेंसी से टोडलर स्टेज की ओर जाते हैं, ठीक है, तो उनमें ब्लेडर कंट्रोल जो है वो सीखने लगते हैं. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन इज, ड्यूरिंग टोडलर स्टेज चिल्ड्रन बिगिन टू, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज एंगेज इन फैंटेसी प्लेज. सो इस स्टेज पे क्या है, बच्चे जो है वो अक्सर अपने एडल्ट्स को इमिटेट करते हैं. ठीक है, तो दे एंगेज इन इमिटेटिंग द एडल्ट्स. ठीक है, ये भी एक फीचर है. लाइकवाइज दे एंगेज इन फैंटेसी प्लेज. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, विच बिहेवियर इज कॉमन इन टोडलर्स एज दे स्ट्राइव फॉर इंडिपेंडेंस? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज हैविंग टेंट्रम्स. ठीक है, तो इसका मतलब है जो ही बच्चे जो टोडलर स्टेज में होते हैं तो व्हेन दे स्ट्राइव फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है, तो वो टेंट्रम्स थ्रो करते हैं. लाइकवाइज दे दैट इज़ अ सॉर्ट ऑफ शोइंग द एंगर एंड रिजेंटमेंट. ठीक है, वो अपने एक्सप्रेशन देते हैं अपने इमोशंस को. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is, a significant cognitive milestone in early childhood is, and the correct option is option B, that is identifying pennies, nickels and dimes. That is कि वो उनमें न्यूमरेसी आ जाती है और यू कैन से नंबर रिकॉग्निशन जो है वो चीज़ आ जाती है. दैट इज़ वन ऑफ द cognitive milestone that is achieved during childhood. ठीक है, next question. Question is, during early childhood children transition from 4-word sentences to, and the correct option is option A, that is full sentences. यानी कि वो बच्चे पहले जो बोलना स्टार्ट करते हैं तो वो शॉर्ट फ्रेजेस में बोलना स्टार्ट करते हैं, देन दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द फुल सेंटेंसेस. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. Question is, which social behavior is commonly seen in early childhood? And the correct option is option C, wanting to please the adults. ठीक है, तो ये pleasing the adults जो है ये किसके लिए होता है? For approval and appreciation. ठीक है, ये बच्चों की इनबिल्ट खासियत हो जाती है. एज अ सोशल बिहेवियर को जब वो लर्न करते हैं तो दे वांट टू प्लीज द एडल्ट्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेवलपमेंटल माइलस्टोन
in the latency stage, and the correct option is option C, that is good body control. ठीक है, so as a child is growing, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉडी का एक अच्छा कंट्रोल, यानी अपने बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सीखता है. ठीक है, यानी अपने आप को बैलेंस करना सीखता है. ठीक है, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग लेटेंसी चिल्ड्रन डेवलप मोर कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्किल्स मूविंग फ्रॉम, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज फुल सेंटेंसेस टू वेल डेवलप्ड कम्युनिकेशन स्किल्स. ठीक है, जब बच्चा लेटेंसी फेज़ के दौरान होता है तो उसमें वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज स्किल्स सीखता है, जहाँ पे वो पहले फुल सेंटेंसेस से स्टार्ट करता है एंड स्लोली द चाइल्ड बिगिंस टू हैव वेल डेवलप्ड कम्युनिकेशन स्किल्स. अब वो पूरे तरीके से क्वेश्चन एंड आंसर दे पाता है या बात कर पाता है, कम्युनिकेट कर पाता है. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉमन सोशल डेवलपमेंट इन लेटेंसी इज, and the correct option is option A, that is forming highly selective relationships. जो बेस्ट फ्रेंड वाली रिलेशनशिप है वो हम लेटेंसी फेज़ में डेवलप करना स्टार्ट करती हैं. तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कि यहाँ पे हम जो बेस्ट फ्रेंडशिप्स हैं वो हम यहीं पे डेवलप करना स्टार्ट करते हैं कि लाइक ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज एडोलेसेंस इज करेक्टराइज्ड बाय, and the correct option is option A, that is physical, rapid physical and sexual development जो है वो adolescence में हो जाता है. ठीक है, therefore option A जो है वो correct option है. Next question is which cognitive development typically appears during adolescence. ठीक है, and the correct option is option B, that is abstract thinking. ठीक है, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में फॉर एग्जाम्पल यही वो स्टेज होता है एडोलेसेंस में जहाँ पे बच्चे जो हैं या जो ग्रोइंग चिल्ड्रन होते हैं दे फॉर एग्जाम्पल प्लान फॉर देयर फ्यूचर. ठीक है, तो फ्यूचर प्लानिंग जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ एन और अ काइंड ऑफ और एन एग्जाम्पल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग. तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो एडोलेसेंस में हो जाता है, विच टिपिकली अपीयर्स ड्यूरिंग द फेज ऑफ एडोलेसेंस. ठीक, नेक्स्ट question is a common social behavior in adolescence is, and the correct option is option C, that is forming a gang of friends. ठीक है, तो socialization basically that becomes very common during adolescence. ठीक है, socialization. ठीक है, हम अपने जैसे लोगों के साथ गैंग ऑफ फ्रेंड्स बनाने शुरू करते हैं. दो ये फ्रेंडशिप्स जो हैं ये इतनी they are less intense friendships. ठीक है, they are less intense relationships, that is they are not very serious relationships. ये उतनी serious नहीं होती है, non serious relationships होती हैं. ठीक है, next question is adolescents often worry about, and the correct option is option C, grades, appearance and their popularity. ठीक है, ग्रेड्स की हाउ दे स्कोर इन देयर स्कूल एट्सेट्रा. ठीक, इसी तरह अपेयरेंस का मतलब है हाउ दे लुक. ठीक है, एंड पॉपुलरिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो उनका सोशल स्टैंडिंग क्या है. ठीक है, उनकी सोशल पोजिशनिंग क्या है विद इन देयर पीयर ग्रुप्स. ठीक है, ये इनका क्या होता है. तो इनके लिए एडोलेसेंट्स दे आर वरीड अबाउट दीज थिंग्स. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डेवलपमेंटल माइलस्टोन इज ऑफन अचीव्ड इन अर्ली चाइल्डहुड. ठीक, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज रीडिंग एंड राइटिंग. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी जेनेटिक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन. ठीक है, दैट इज़ कि हमारे जो जेनेटिक मेकअप है, ठीक है, तो वो कैसा है, हमारे जीन्स कौन सी चीज़ों को फेवर करते हैं, कौन से इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को फेवर करते हैं, अकॉर्डिंगली हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो इन्फ्लुएंस हो जाती है. ठीक, नेक्स्ट
हाँ, one more thing which I would like to add, for example, nutrition, physical environment, socio-economic status, they have also a key important and pivotal role to play in the growth and development, and therefore they have a significant influence on the growth and development of children. लेकिन जो primary factor है वो है genetic predisposition. It should not have been in the question asked. ठीक है. Next question. Question is, which of the following prenatal factors can negatively affect the fetal growth? ठीक है, fetal growth का मतलब है the fetus that is growing inside the womb of the mother. ठीक है, जो fetus है inside the womb of the mother, ठीक, उस पे कौन से factors negatively affect करते हैं? Number 1, maternal nutrition, this is true. Maternal infection, that's true. Maternal substance abuse, that's true. एंड देयरफॉर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, बिकॉज ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये फीटल ग्रोथ को इम्पैक्ट करते हैं. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, व्हाई इज द इंट्रा यूटेराइन एनवायरनमेंट क्रूशियल फॉर फीटल डेवलपमेंट? ओके, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीटस थ्रू वेरियस कंडीशन जो हमने पहले वाले क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे. ठीक है, तो दे ऑल थिंग्स टुगेदरली उनका एक कलेक्टिव इन्फ्लुएंस होता है ऑन द फीटल डेवलपमेंट. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, विच पोस्ट नैटल फैक्टर, दैट इज आफ्टर बर्थ फैक्टर, इज डायरेक्टली रिलेटेड टू चाइल्ड्स ग्रोथ पोटेंशियल? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, न्यूट्रिशन. ये सबसे ज़्यादा प्राइमरी सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंस यही रखता है कि आप बच्चे को क्या फीड कर रहे हैं. ठीक है, दैट मीन्स जो पोस्ट नेटल फैक्टर है दैट इज़ द फीडिंग ऑफ द चाइल्ड. ठीक, आप उसको क्या खिला रहे हो. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, हाउ डज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस इन्फ्लुएंस अ चाइल्ड्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? And the correct option is option C, that is children from higher social economic classes, they tend to be taller and mature more rapidly. It is because क्योंकि उनके पास दो मेजर चीज़ें होती हैं. One, they have healthy nutrition. ठीक है, their children do not suffer from any malnutrition. एक ये चीज़. दूसरा, उनके पास एक excellent हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ होती हैं. ठीक है, तो उन्हें उनकी जो हेल्थ है उनकी उसमें अच्छा केयर मिलता है. बिकॉज ऑफ दैट उनकी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो उसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है. ठीक. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, विच डेफिशिएंसी इज मोस्ट लाइकली टू अफेक्ट साइकोमोटर डेवलपमेंट विदाउट अफेक्टिंग ग्रोथ? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी. ठीक, इसकी वजह से साइकोमोटर डेवलपमेंट जो है उसमें इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है. ठीक. वाइल एज फॉर एग्जांपल जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों को इम्पैक्ट करता है, दैट इज़ फॉर एग्जांपल जिंक डेफिशिएंसी. ठीक. सो दीज आर द न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज जिनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, व्हाट डज द अर्ली प्रोटीन हाइपोथेसिस सजेस्ट रिगार्डिंग इन्फेंट न्यूट्रिशन? ठीक. And the correct option is option B, that is low protein intake during infancy. It helps achieve the normal growth and also it reduces the obesity in the later stages of life. Therefore option B जो है वो correct option है. That means कि early protein hypothesis का मानना है कि during infancy बच्चों को हमें प्रोटीन इनटेक जो है वो लो रखना चाहिए ताकि उनका नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो और ओबेसिटी होने के चांसेस, यानी इन्फ्लिक्टिंग विद द ओबेसिटी और ओबेसिटी रिलेटेड डिसऑर्डर्स, तो वो उनमें रिड्यूस हो जाते हैं. दैट्स वाई लो प्रोटीन इनटेक इज रिकमेंडेड एज पर द अर्ली प्रोटीन हाइपोथेसिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, हाउ डू पोल्यूटेंट्स इन द एनवायरनमेंट अफेक्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? सो पोल्यूटेंट्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे क्या इफेक्ट होता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कि वो डिले करते हैं सेक्सुअल मैच्योरेशन को एंड ऑल्सो वो डेवलपमेंटल इश्यूज भी कॉज करते हैं. ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोफाउंड नेग्लेक्ट ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड? ठीक है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इम्पेयर डेवलपमेंट एंड बिहेवियरल इश्यूज. इन बच्चों में हो जाते हैं जिनको हम
या जिनको बचपन में एक प्रोफाउंड नेग्लेक्ट होता है, ठीक है, सोसाइटी की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, ठीक है, तो उसकी वजह से उनमें बिहेवियरल एंड डेवलपमेंटल इम्पेयरमेंट हो जाती है, बिहेवियरल इश्यूज हो जाते हैं, ठीक है। Therefore option B is the correct option. Next question. Question is why is early intervention important for children with adverse experiences? यानी ऐसे बच्चे जो चाइल्डहुड ट्रॉमा से गुजरे होते हैं। एडवर्स एक्सपीरियंसेस मतलब जिनमें चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, तो उन बच्चों के लिए अर्ली इंटरवेंशन क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट इज़ बिकॉज इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन देयर डेवलपमेंट। ये इनकरेक्ट है, ठीक। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर जेनेटिक फैक्टर, अगेन नॉट करेक्ट। इट ओनली अफेक्ट्स देयर फिजिकल ग्रोथ, नॉट करेक्ट। देयरफॉर ऑप्शन डी जो है, बिकॉज इट कैन रिवर्स द नेगेटिव effects एंड प्रमोट हेल्दी डेवलपमेंट, फिर ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन जाएगा, ठीक है। अगर हम अर्ली इंटरवेंशन उन बच्चों के साथ करेंगे जो चाइल्डहुड ट्रामास, एडवर्स एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस के साथ गुजरे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट, ठीक, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज एलिवेटिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स। लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज करना, एलिवेट करना, इम्प्रूव करना, दैट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपमेंट। और ये लिविंग स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि आप एजुकेशन आम करें, ठीक है, आप हेल्थ केयर को अफोर्डेबल बनाएं, ठीक है, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, ठीक। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपमेंट, दीज आर द एम्स ऑफ डेवलपमेंट, और उन सब का एक कॉमन जो मोटिव है दैट इज एलिवेटिंग द लिविंग स्टैंडर्ड्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज डेवलपमेंट aim to enhance societal options for individuals and nations, ठीक। Option first is by promoting subservience and dependency. This is incorrect because subservience and dependency जो है वो developmental indicators नहीं है। By limiting educational opportunities, ये बिल्कुल incorrect है। Option C is by liberating them from ignorance and suffering. Option D is by restricting economic growth. This is false. Therefore option C जो है वो करेक्ट ऑप्शन जाएगा। अगर हम इंडिविजुअल्स को और नेशंस को इग्नोरेंस एंड सफरिंग से लिबरेट करेंगे, ठीक है, उनको फ्रीडम देंगे, उनको फ्री करेंगे फ्रॉम इग्नोरेंस एंड सफरिंग, that is actually the aim of development. That's the true aim of development. Option C is the correct option. Next question is which factor is crucial for healthy development of children with adverse early experiences? तो ये हमने इससे पहले भी देखा, this is just a different way of saying the same thing, ठीक है। and the correct option is option B, that is early intervention जो है and support, एक सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करने का और अर्ली इंटरवेंशन जो है, these are the two key reasons and you can say methods जिनकी वजह से हम चाइल्डहुड ट्रामाज या जो एडवर्स अर्ली एक्सपीरियंसेस, बैड एक्सपीरियंसेस के जो बच्चे हैं उनको टुवर्ड्स हेल्थी डेवलपमेंट की ओर ले जाएंगे, ठीक है। यानी उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने का, उनकी ज़िंदगी को एक नई शेप देने का मेथड जो है वो है अर्ली इंटरवेंशन एंड क्रिएटिंग ए सपोर्ट सिस्टम। वाइल जो ऑप्शन ए है इग्नोरिंग अर्ली साइंस ऑफ डिस्ट्रेस, दिस इज़ एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। इसकी वजह से चीज़ें और बिगड़ जाएंगी। लिमिटिंग सोशल इंट्रैक्शंस, दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि अगर हम सोशल इंट्रैक्शंस को लिमिट करेंगे उनकी वजह से जो बच्चों का ओवरऑल बिहेवियर है उसमें बिहेवियरल इश्यूज़ हो जाते हैं। वो नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सीखते हैं, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सीख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह डिलेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, इसकी वजह से भी जो बच्चे हैं वो डेवलप नहीं होते हैं या उनका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता है। सो डिलेड एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ इज़ अ सॉर्ट ऑफ अ प्योर डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सो ये बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन है। देयरफॉर ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट सिस्टम है, सॉरी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डायरेक्शन डज डेवलपमेंट प्रोग्रेस ड्यूरिंग इन्फेंसी? जो ग्रोथ हो रही होती है, डेवलपमेंट हो रही होती है ड्यूरिंग इन्फेंसी पीरियड, उसका क्या डायरेक्शन है? तो इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, सेफेलो एंड टू कॉर्डल एंड मिड लाइन टू लेटरल। इसका क्या मतलब है?
sorry, by cephalo you mean head. दैट मीन्स हेड रीजन से लेके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट होके कॉर्डल रीजन तक, कॉर्डल डायरेक्शन में ग्रो करता है, ठीक है। कॉर्डल मीन्स टेल, ठीक है। मिड लाइन मीन्स जो बीच का सेंटर है, टुवर्ड्स द लेटरल, लेटरल का मतलब है आउटवर्ड्स। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ड्यूरिंग इन्फेंसी, ठीक। नेक्स्ट question is, which primitive reflex helps in efficient feeding during infancy? And the correct option is option C, that is sucking and rooting reflex, ठीक है। they help in the efficient feeding during infancy period, ठीक। next question is, by what age should the social smile typically be developed? And the correct option is option C, ठीक है। that is 4 weeks में, 4 weeks मीन्स 1 month में, ठीक है। तो सोशल स्माइल जो है वो बच्चा इन दैट शुड बी एक्चुअली रिफ्लेक्ट कि हाँ ये बच्चा ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द क्रूशियल प्रिडिक्टर ऑफ कॉग्निटिव फंक्शन इन अर्ली चाइल्डहुड? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज़ लैंग्वेज, ठीक। लैंग्वेज जो है इट्स कंसिडर्ड कि सबसे क्रूशियल प्रिडिक्टर है कि यू कैन प्रिडिक्ट हाँ कि ये बच्चा जो है इसकी कॉग्निशन डेवलपमेंट जो है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट है या इसका जो कॉग्निशन पावर्स हैं, ठीक है, या डेवलपमेंट जो इसकी है वो स्मूथली जा रही है, वो क्वेश्चनेबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट व्हाट एज डू चिल्ड्रन टिपिकली लर्न independent existence skills such as feeding and toilet training? And the correct option is option A, that is between 1 and 3 years. 1 से 3 साल के एज गैप में बच्चे इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस स्किल जैसे कि खुद वो खा सकते हैं, खुद टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें वो 3 साल तक सीख जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट हॉलमार्क इवेंट signifies the beginning of adolescence? And the correct option is option B, that is the puberty changes. और ये changes जो हैं ये जो हमारे सेक्सुअल, प्राइमरी सेक्सुअल एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो हैं वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। और इनका जो मार्कर है, जैसे जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि हमारी जो वॉइस है वो चेंज होने लगती है। इन केस ऑफ मेल्स अपीयरेंस ऑफ बियर्ड होने लगता है, ठीक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन केस ऑफ फीमेल्स हो जाता है, ठीक है। इसी तरह इवन वॉइस मॉड्यूलेशन हो जाता है इन केस ऑफ फीमेल्स, ठीक है। तो दीज आर सम ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इनके साथ साथ जो हमारी प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच असेसमेंट इज़ यूज्ड टू इवेल्युएट प्यूबर्टी चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस? ठीक है, इनमें से कौन सा असेसमेंट है जिससे हम प्यूबर्टी चेंजेस को इवेल्युएट करते हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज टेनर स्टेजिंग। ठीक, स्पीकिंग ऑफ टेनर स्टेजिंग, दिस इज ऑल्सो नोन एज SMR, जिसका मतलब है सेक्शुअल मैच्योरिटी रेटिंग। ठीक है, सो इट्स एन ऑब्जेक्टिव क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसमें हम जो प्रोवाइडर्स होते हैं वो एक डॉक्यूमेंट को यूज़ करते हैं एंड वो डेवलपमेंट एंड सीक्वेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन ड्यूरिंग प्यूबर्टी को यू कैन से डॉक्यूमेंट करते हैं। ठीक है, इसमें जो प्रोवाइडर्स हैं दे यूज़ डेवलपमेंट एंड सीक्वेंस ऑफ secondary sexual characteristics of children or in children during puberty. ठीक है, next question is what is a major developmental challenge during adolescence? And the correct option is option D, that is acceptance of a new body and establishing independence, यानी अपने आप को as a new social individual
ठीक है, न्यू सोशल इंडिविजुअल की तौर पे अपने आप को इस्टेब्लिश करना, यानी अपनी एक सोशल आइडेंटिटी और यू कैन से आइडेंटिटी इन जनरल, ठीक है, वो क्रिएट करना, ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक, देयरफॉर ऑप्शन डी जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल राइट, क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज true about development in humans, and the correct option is option B, that is development continues till death. That means development जो है it proceeds throughout life, ठीक है, it proceeds throughout life, there is no end to development. However growth जो है that ceases after adolescence, growth ceases, लेकिन development doesn't, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, क्वेश्चनिंग स्किल्स डेवलप ड्यूरिंग दिस स्टेज। ठीक, बच्चे इस फेज़ में बहुत सारे सवाल पूछते हैं अक्सर, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग टू पुट फॉरवर्ड कि बच्चे अक्सर बहुत सवाल करते हैं। इट्स बिकॉज क्योंकि ड्यूरिंग देयर अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक ही है ऑफ देयर डेवलपमेंट कि उनके क्वेश्चनिंग स्किल्स बढ़ने डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं, देयरफॉर दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, question is which reflex is typically lost by 6 months to facilitate mature development, and the correct option is option C, that is grasp reflex. ठीक है, next question is what development is cortical function that occurs earlier than motor skills in infancy, and the correct option is option B, that is social development. ठीक है, ये पहले हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो हम एक सोशल स्माइल की हमने बात करी थी एक क्वेश्चन में, ठीक है, तो सोशल स्माइल, बच्चे जब हम बच्चों को यहाँ से देखते हैं वो वहाँ से एक स्माइल पास करते हैं, तो दैट इज़ एक्चुअली सोशल डेवलपमेंट। जो मोटर स्किल्स बच्चों में इन्फेंसी में, उससे पहले सोशल डेवलपमेंट होता है बच्चों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द प्रिंसिपल दैट डेवलपमेंट इंक्लूड्स बोथ गेन एंड लॉस, ठीक है, ड्यूरिंग द लाइफ स्पैन मीन। ठीक है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसका एक प्रिंसिपल है, वो ये है कि देयर इज़ गेन एंड लॉस बोथ इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि जब डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा होता है उसमें हम कुछ स्किल्स किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर हम एक्वायर करते हैं वाइल पोटेंशियली लूजिंग अदर स्किल्स इन सम अदर एरिया, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स एक्वायरिंग स्किल्स वाइल पोटेंशियली लूजिंग अदर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अक्सर आपने देखा होगा जो हम ग्रो हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, तो इनिशियली हमारे समझने कॉम्प्रहेंशन हमारा लो होता है, लेकिन हमारा रिटेंशन ज़्यादा होता है। बचपन में हमारी मेमोराइजेशन ज़्यादा होती है, हमारा रोट लर्निंग स्किल ज़्यादा होता है, और यू कैन इन अदर वर्ड से, लेकिन जो हमारा कॉम्प्रहेंशन है, जो समझ है, वो कम होती है। लेकिन एज वी ग्रो हमारी जो मेमोराइजेशन है, हमारी जो मेमोरी है वो लो होने लगती है, हमारा रोट लर्निंग स्किल जो है वो कम होने लगता है, मेमोराइजेशन टेक्निक हमारी कम हो जाती है, लेकिन हमारा कॉम्प्रहेंशन बढ़ जाता है। तो उम्र के साथ हमारी जो समझ है वो बढ़ जाती है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल कि जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट दैट इंक्लूड्स बोथ ग्रोथ, गेन एंड लॉस ड्यूरिंग द लाइफ स्पेन, वो यही है कि हम कुछ स्किल्स को एक्वायर करते हैं लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ सम अदर स्किल्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर मोर सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग adolescence. ठीक, and the correct option is option C, that is puberty and cognitive changes. ठीक है, puberty का मतलब है हमारी जो growth and development with respect to the development of sexual characteristics हैं, changes in sexuality जो है वो हो जाता है, that is sexual secondary sexual characteristics। वो second cognitive changes है, जो हमारी comprehension है, जो हमारा दिमाग है, वो उसकी जो abilities हैं वो उसमें चेंजेस आ जाती हैं। ऑब्वियसली हमारा कॉम्प्रहेंशन बढ़ता है, हम चीज़ों को बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट एज डू इन्फेंट्स टिपिकली डबल देयर बर्थ वेट, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज 6 months। ठीक है, 6 months के अंदर बच्चे जो हैं वो अपना बर्थ वेट जो है वो डबल करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सिग्निफिकेंट फिजिकल चेंज
occurs during adolescence, and the correct option is option B, that is development of secondary sexual characteristics, जिसका मतलब है puberty. ठीक है, that is onset of puberty, यानी जो adolescents हैं उनमें puberty आ जाती है, विच इज़ द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हमने देखा कि वॉइस मॉड्यूलेशन हो जाता है 1, ठीक है, अपीयरेंस ऑफ हेयर ग्रोथ हो जाता है, फीमेल्स में फॉर एग्जांपल ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। इसी तरह जो अदर कैरेक्टरिस्टिक्स सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेल्स एंड फीमेल्स में, दैट डिफरेंट, बॉयज़ एंड गर्ल्स में दैट डिफरेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन डू एडल्ट्स टिपिकली रीच देयर मैक्सिमम बॉडी साइज, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ओके ऑप्शन सी, दैट इज अर्ली 20s में जो है एडल्ट्स अपना मैक्सिमम बॉडी साइज ग्रो करते हैं। नेक्स्ट Question is, which cognitive ability tends to improve during school years? And the correct option is option B, that is abstract reasoning, ठीक है, जो abstract reasoning है और जिसे हम critical thinking कहते हैं, you just can remember this abstract thinking, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जो है ये स्कूल ईयर्स में हमारी वन ऑफ द सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, वो इम्प्रूव होना स्टार्ट करती है, ठीक है, और इम्प्रूव हो जाती है बाय द एंड ऑफ दिस फेज, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपन्स टू कॉग्निटिव फंक्शंस इन ओल्ड एज, ठीक। दे कम्प्लीटली डिसअपेयर, नो, they tend to decline, this is true, they remain the same, this is also incorrect, they significantly increase, this is incorrect, therefore option B जो है वो करेक्ट है, बिकॉज ओल्ड एज में हमारे जो कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, हमारे जो ब्रेनली फंक्शंस हैं, हमारे जो सेरेब्रल फंक्शंस हैं वो डिक्लाइन होना स्टार्ट करते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू बेबीज प्राइमरली डेवलप ए सिक्योर अटैचमेंट विद देयर केयर गिवर्स? Through independent exploration, no. Through interaction and care. By avoiding social interaction, no. Through cognitive development, no. ऑप्शन बी जो है वो सबसे अप्रोप्रिएट है, therefore ऑप्शन बी को हम मार्क करेंगे, क्योंकि इंट्रैक्शन और केयर, जब अपना केयर गिवर अपने बेबी के साथ इंट्रैक्ट करता है, उसे केयर करता है, तो वो एक सिक्योरिटी फील करता है उस अपने केयर गिवर के साथ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ की सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट task during adolescence? And the correct option is option B, that is navigating love relationships and peer pressure. That means जब जो adolescents होते हैं उनको सबसे ज़्यादा social and emotional जो developmental task होता है वो होता है नंबर 1, जो उनके since they are attracted to the opposite gender, तो उनमें जो love relationships start होने लगते हैं, तो through that वो जो phase होता है, वो जो टेंशन स्ट्रेस रहता है बिकॉज ऑफ दोज थिंग्स, उनको कैसे हैंडल करना, दैट्स 1। सेकेंड, जो उनके अपने पीयर ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, अपने एज के ग्रुप्स होते हैं, और उनमें अपनी एक सोशल आइडेंटिटी और सेल्फ आइडेंटिटी उसको बिल्ड करना और उसको सस्टेन करके रखना, वो उनका एक पीयर प्रेशर होता है। ये चीज़ें बड़ी सोशल और इमोशनल डेवलपमेंटल टास्क्स होती हैं और सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट रखती हैं ओवरऑल एडोलेसेंट पे, उसके नेचर पे, उसके बिहेवियर पे ड्यूरिंग दैट एडोलेसेंस फेज, ठीक। देयरफॉर ऑप्शन बी जो है वो सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट वट स्टेज डू चिल्ड्रन स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द इंटेंशंस बिहाइंड एक्शंस? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज स्कूल ईयर्स, ठीक है। एंड ड्यूरिंग दीज स्कूल ईयर्स, इस फेज़ में ही, इस एज ग्रुप में ही वो रिलेटिव नेचर और नेचर बिहाइंड द रूल्स जो है वो क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मॉरल डेवलपमेंट माइलस्टोन डू टीनेजर्स टिपिकली रीच? एंड द करेक्ट ऑप्शन इज दे डेवलप एन इंडिविजुअल सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स, ठीक है। दैट मीन्स वो चीज़ों को अपना एक पर्सपेक्टिव, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू, अपना एक ओपिनियन उस नज़र से देखते हैं, दैट इज़ उनमें डेवलपमेंट ऑफ पर्सपेक्टिव आ जाता है, एक पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है,
ठीक है, यानी उनमें ओपिनियंस आ जाते हैं, वो ओपिनिएटेड इंडिविजुअल्स बनते हैं, ठीक है, ओपिनिएटेड इंडिविजुअल्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एज ग्रुप primarily gains wisdom that helps in moral judgment, okay, and the correct option is option D, that is adults, ठीक। Next question is which type of development involves forming an attachment with caregivers, and the correct option is option C, that is social and emotional development. So option C is the correct option. Next question is which type of development includes learning to read एंड परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ये कौन सी तरह की डेवलपमेंट होती है जो विच फॉर्म्स द पार्ट ऑफ, जहाँ पे हम लर्निंग टू रीड करते हैं, यानी पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, एज वेल एज मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, जैसे एडिशन, ठीक है, सॉरी, जैसे फॉर एग्जांपल एडिशन, जैसे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो दीज आर द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, है ना। तो ये किस डेवलपमेंट को बिलोंग करता है, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज बी, that is cognitive development. So these are the development that are associated with learning to read and write and mathematical calculations, ठीक। Next question is which developmental stage is characterized by the maturation of organ systems, यानी किस स्टेज में हमारे organs mature होना start करते हैं, या you can say mature हो जाते हैं, ठीक है। Next इसका जो correct answer है that is adolescence, ठीक है। एडोलेसेंस में हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, फुली मैच्योर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इन यंग चिल्ड्रन, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज अंडरस्टैंडिंग रूल्स एंड पनिशमेंट एज अ पार्ट ऑफ योर मॉरल डेवलपमेंट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट व्हाट डेवलपमेंटल स्टेज do humans start losing mass and strength, and the correct option is option D, that is adulthood, ठीक है। जो ही हम adulthood में आ जाते हैं तो आहिस्ता जो ही हम you can say when we start growing old, तो हम slowly अपना mass and strength lose करते हैं, ठीक है, that is one। and begin कब करते हैं, that is in our early 20s। सबसे ज़्यादा जो हमारी maximum bodies मास होता है, साइज़ होता है, वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हमारे अर्ली 20s में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू अब्राहम मास्लो व्हाट इज़ द गोल ऑफ डेवलपमेंटल चेंजेस, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, जिसे कॉमनली सेल्फ रियलाइजेशन भी है, यानी आइडेंटिफाइंग योर सेल्फ, ठीक। नेक्स्ट question is what does the proximo-distal principle of development describe, and the correct option is option B, that is development जो है that occurs from center of the body outward, ठीक। therefore option B जो है वो correct option है। next question is what does the cephalocaudal principle of development state, it states कि development process जो है it proceeds from head to tail, ठीक है। सिफेलो मीन्स हेड, कॉडल मीन्स टेल, दैट मीन्स बच्चे को सबसे पहला जो कंट्रोल आ जाता है वो अपने अपर बॉडी पार्ट में आता है, देन इट स्टार्ट्स टूवर्ड्स द लोअर बॉडी पार्ट्स, ठीक है। जो सबसे पहला कंट्रोल आता है वो अपने आर्म्स में आता है, उसके बाद इट गोज डाउन टू द लेग्स, ठीक। दैट्स व्हाट सिफेलोकॉडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू individual differences in the rate of development, and the correct option is option C, that is both genetic and environment factors, they contribute and influence the individual difference amongst the people, ठीक, or two individuals, all right। so this was the last question of this particular lecture, see you some other time।